Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12th, Chapter number 5, Poverty. So as we are starting up with a new chapter, without wasting the time, now let us move on with the line-to-line explanation of the chapter, how the poverty is playing an important role in the economics that we are going to see up today. So this chapter is going to give us a many realistic and practical knowledge of our poverty condition in the economic in our country India. So now let us move on with the line-to-line explanation of the chapter from the textbook in the further video from the PDF. So students, now let us move on with the chapter number 5, Poverty. So in this chapter, we are going to start up with the new portion, part 1 of the chapter. So first of all, as usual, what are the things that is included in the chapter Poverty? Introduction is there, meaning of the poverty, what is the nature of the poverty that has been explained up. After that, the indicators that are used to measure up the poverty that has been shown up to us. Then what are the causes of the poverty? After the causes, we are seeing some measures to reduce the poverty. After seeing whole portion, what is the problem? Then again the question comes to how to remove it. So the measures to remove it and what are the things that has been done by the government for removing that portion. What are the schemes and projects were being established by the government, that all things are being discussed up in this chapter. So now let us move on with the introduction. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. Poverty is such a situation existing in the economic under which one class of economic is unable to fulfill the minimum basic need. In most of the developing economics, where the per capita income is very low and there exists high level of income inequality, a large portion of poor population cannot enjoy a healthy life of unavailability of minimum basic requirement as such as nutritive foods, clothes, proper housing. So until this, first of all, we will discuss poverty. What is poverty? Poverty is a situation which is considered in economic एक ऐसा सिचुएशन जो इकोनॉमी के अंदर देखा जाता है जिसके अंदर वन क्लास ऑफ पीपल आर एबल टू फुलफिल देयर मिनिमम बेसिक नीड्स. उनका जो बेसिक नीड्स होता है उसको कंप्लीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए वो कैपेबल होते हैं. जबकि मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं जो कंप्लीट करने के एबल होते हैं वो पॉवर्टी के अबाव है ये माना जाता है. तो व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी मीन्स द पीपल हु आर नॉट अनएबल टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक नीड. व्हाट इज द बेसिक नीड? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक नीड, इट इज फूड, क्लोथ एंड हाउस. जब ये तीन मिनिमम बेसिक नीड भी एक इंसान फुलफिल नहीं कर पाता है, एक क्लास या एक ग्रुप ऑफ पीपल फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को पॉवर्टी माना जाता है. सो मोस्ट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज, इनकी इकोनॉमिक्स डेवलपिंग होती है. तो अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम देखा जाता है. For example, last time when we were seeing the indicator of per capita income, in that we have seen the Pakistan was having only 1,147 somewhat like that per capita income in dollar. तो ये बहुत ही कम है. So if you are seeing a very per capita low income, then there is an existence that the high level of income inequality has been seen on a large portion. तो हमारा जो per capita income है अगर वो लो आ रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चल जाना चाहिए कि लार्ज स्केल ऑफ जो पुअर पीपल है, यानी जो गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी मतलब जैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ये टॉपिक को हमने डिस्कस किया था. अगर एक इंसान 10 लाख कमा रहा है और एक इंसान 5 लाख और एक इंसान लाख
और दूसरा जो है 10,000 और दूसरा 1,000, तो ये सारे को टोटल करके हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो ओवरऑल सबके जो पर कैपिटा इनकम है उसमें हमें 30,000 20,000 आ जाता है। बट व्हाट अबाउट द पर्सन हु इज अर्निंग ओनली 1,000? तो इस तरीके से लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पुअर जो होते हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रह पाते, उनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट की अनअवेलेबिलिटी होती है। अनअवेलेबिलिटी इन द सेंस उनको जितनी चीज़ें चाहिए होती है उतनी चीज़ें उन्हें मिल नहीं पाती। तो क्या क्या चीज़ें, एक तो उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, सेकेंड उनके कपड़े नहीं मिल पाते और अच्छा घर नहीं मिल पाता। यू नो दैट प्रॉपर हाउस इज ऑल्सो अ बेसिक नीड। अगर बारिश हो रही है, ठीक है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो उसके लिए घर तो चाहिए ना, घर के बिना तो हम रह नहीं सकते। सो बेसिक रिक्वायरमेंट में फूड, क्लोथ एंड हाउस इज कमिंग। इन हिंदी वी से ना रोटी कपड़ा मकान। सो दिस थ्री थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द हेल्दी और वी कैन से दैट बेसिक नीड ऑफ एनी पर्सन। एक अच्छा सा एक इंसान एक नॉर्मल लाइफ, एक अच्छी लाइफ की जगह एक नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहता है तो उसके पास घर, कपड़ा और खाना होना चाहिए। तीनों के बिना तो वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ये फुलफिल हो तब जाके वो आगे और किसी चीज के बारे में सोच सकता है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द फर्दर पोर्शन। On the other hand, rich and resourceful classes enjoy high income and high standard of living. Due to existing economic inequality in the country, the society faces dissatisfaction, restlessness, hatred, and class conflict. According to HDR 1997, economic development is a resources and human development is the goal. So, it is expected that economic development should result in reduction in poverty. Unless there is reduction in income inequality and poverty, economic development cannot be said to be the development in true sense. So दूसरी बात, ये तो हुआ जो है पुअर लोगों की बात। अगर ये वन साइड है तो दूसरे हैंड ऑन द अदर हैंड, अदर साइड अगर हम बात करते तो हाई क्लास पीपल जिनकी इनकम ज़्यादा है, जैसे अभी मैंने बात किया 1,000 रुपीज़ जो कमा रहा है उसको खाना क्या खरीदेगा, खाना क्या खाएगा, कपड़े क्या खरीदेगा, घर कैसे उसका चलाएगा। सो दिस क्वेश्चन कम्स अप। बट वही अगर 1 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, ये तो हाई इनकम हो गया, तो वो अपना जो रिच लाइफ है उसको रिसोर्सफुली एंजॉय कर रहे हैं। उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, उनके बच्चे एसी के बिना रह नहीं सकते, ठीक है, नॉर्मल इंपोर्टेड खाना ही उनको अच्छा लगता है, इंपोर्टेड फ्रूट्स पसंद करते हैं, तो इस तरीके से उनका लाइफस्टाइल बहुत ही हाई हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक कंट्री में देखने को मिल रहा है, इस वजह से सोसाइटी को कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन यानी देखो एक बाजू फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग, एक बाजू एक इंसान बहुत अच्छा खाना खा रहा है और अच्छा लाइफ जी रहा है और एक बाजू एक इंसान को खाना ही नहीं मिल रहा है, तो क्या हम संतोष ले सकते हैं? कैन बी सेटिस्फाइड? नो। सो हियर द सोसाइटी फेसेस द डिससेटिस्फेक्शन, वो खुशी नहीं हो पाता है, इट इज फेसिंग द डिससेटिस्फेक्शन, रेस्टलेसनेस, उसे बेचैनी रहती है, गुस्सा आता है, क्लास कन्फ्लिक्ट होता है। क्लास कन्फ्लिक्ट मतलब हम बोलते हैं ना वो अमीर है हम गरीब है, दैट क्लास कन्फ्लिक्ट विल स्टार्ट अप, वो एक झगड़ा जैसा, एक हेट्रेड, एक नफरत जैसी चीजें फॉर्म अप होने लगता है। अकॉर्डिंग टू HDR 1997, HDR की रिपोर्ट 1919 के हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा रिसोर्सिस है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को एक गोल की तरह देखता है। यहाँ पे इंसानों का डेवलपमेंट होना ज़रूरी माना जाता है। इंसान यानी क्या 2 कान से 4 कान हो जाए? नो, उनका रहने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये देखा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे रिजल्ट करना चाहिए, तो पॉवर्टी को कम करना चाहिए, ये माना जाता है। अगर वो पॉवर्टी को कम करता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हुआ, ये मानना चाहिए। सो नाउ लेट अस रीड द फर्दर लाइन। Unless there is reduction in income inequality and poverty, economic development cannot be said to be the developed in true sense. Poverty eradication was one of the main goals of some of the 5-year plan in the contest. Especially in the 5th 5-year plan and following plans, poverty addictions and abolitions, special programs and schemes were started, but poverty could not be reduced to the targeted level. तो जब तक हम पॉवर्टी को नहीं हटाते, जब तक पॉवर्टी हट नहीं जाती है, जब तक इनकम का जो अनइक्वालिटी है, जो अनइक्वालिटी एक 10,000 कमा रहा है, एक 40,000 कमा रहा है, ये जो अनइक्वालिटी है ये जब तक हटता नहीं है तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है ऐसा हम मान नहीं सकते। तो कब रियल सेंस में डेवलपमेंट तब होता है जब
ये जो इनकम इनइक्वालिटी है ये हट जाता है, गरीबी हट जाता है और सारे लोग एक ही जैसी लाइफस्टाइल जीते। तो पॉवर्टी को हटाने के लिए एडिकेशंस, मतलब पॉवर्टी एडिकेशंस मीन्स वन ऑफ द मेन गोल, यानी पॉवर्टी को हटाने का एक सबसे बड़ा मेन गोल पहले 5 ईयर प्लान में देखा गया था। स्पेशली फर्स्ट 5 ईयर्स, 5th 5 ईयर प्लान तक ये चीज़ों के ऊपर बहुत सारी ध्यान दिया गया था, बहुत सारे प्लान्स बनाया गया था, कैसे पॉवर्टी को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है, उसको कैसे एविलिएशंस, मतलब उसको जैसे पार करके आगे आया जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे नए नए स्पेशल प्रोग्राम्स लाए गए, स्कीम स्टार्टअप किए गए ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस करके एक टारगेट लेवल तक पहुंचा जाए। यानी गरीबी को पूरा हटाना पॉसिबल नहीं हो सकता, तो कम से कम उसको कम करने की कोशिश तो किया जा सकता है ना, तो उसी के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह देखे गए। ये था इंट्रोडक्शन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द मीनिंग ऑफ द पॉवर्टी। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, अ सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ population cannot even satisfy their minimum requirements are said to be poor. If a larger population is living below the minimum required standard of living, there exists widespread poverty. तो एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेजर यानी बहुत बड़े प्रोपोर्शन की पॉपुलेशन जो है, यानी जो पॉपुलेशन अगर 10 लाख है उसमें से 6 लाख हम मान लेते, ज़्यादा प्रोपोर्शन हो गया ना, सो 6 लाख जो लोग हैं वो अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं कर पा रहे, खाना कपड़ा और घर भी उनके पास नहीं है, तो उनको गरीब बोला जाता है। तो इस तरीके से लार्जर पॉपुलेशन, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नीचे देखा जाता है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट हर महीने आपको 5,000 की ज़रूरत है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, 3 टाइम खाना, कपड़ा और एक घर का भाड़ा, ये तीनों मिला के आपको 5,000, आई एम जस्ट सेइंग एन एस्टिमेशन एग्जाम्पल, ओके, 5,000 की जरूरत है। बट इफ यू आर नॉट हैविंग दैट 5,000 ऑल्सो, इट मीन्स यू आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो इस तरीके से ये देखा गया है कि कितना वाइड स्प्रेड में पॉवर्टी देखा जाता है, और वो जो लोग जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की रिक्वायरमेंट के भी नीचे होते हैं, उतना भी फुलफिल नहीं कर पाते, उन्हें पुअर माना जाता है। So now let us move on with the second paragraph. Many nations of the world have tried to interpret poverty in their ways, but poverty being a relative concept, its meaning changes with change in time, place and society. बहुत सारे वर्ल्ड कंट्री ने, नेशन के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे नेशंस ने, जैसे इंडिया, यूएसए, चाइना, ऐसे बहुत सारे नेशंस ने पॉवर्टी का रियल मीनिंग इंटरप्रेट यानी बताने की कोशिश की, बट पॉवर्टी बहुत ही एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट यानी जैसा टाइम उसके साथ, सिचुएशन के साथ वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो जैसा वो सिचुएशन चेंज होता है, उस चेंज के साथ जैसे टाइम चेंज होता है तो पॉवर्टी चेंज हो जाता है, पॉवर्टी का डेफिनेशन चेंज होता है, जगह चेंज हो जाता है तो पॉवर्टी का डेफिनेशन चेंज होता है, सोसाइटी चेंज होता है तो पॉवर्टी का डेफिनेशन चेंज होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर हमारे इंडिया में पॉवर्टी का मतलब 3 टाइम खाना ना मिलना, कपड़ा ना होना और घर ना होना, वो पॉवर्टी हो गया। वही डेवलप्ड कंट्री यूएसए जैसे की बात कर लो, आपका हर महीने 5,000 आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट आप 4,000 ले लेते हो, 1,000 नहीं फुलफिल कर पा रहे, तो वो पॉवर्टी हो जाता है। वही अगर दूसरी कोई कंट्री ले लेते, सबके पास 4 BHK का घर है बट आपके पास एक 1 BHK घर है, तो वो पॉवर्टी है रिलेटिव टू यू। तो यहाँ पे पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम चेंज, प्लेस टू प्लेस चेंज होता हुआ नजर आता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट paragraph. In most of the interpretation of poverty, an average standard of living is considered as base, and existing inequality in societies are shown. Hence, there exists a difference in the level of poverty. तो मोस्ट ऑफ पॉवर्टी की अगर इंटरप्रिटेशन यानी उसके ऊपर जो चीज़ें बोली गई है, इंटरप्रिट किया गया है, कि बताया गया है, मोस्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो दिया जाता है, जिसे बेस कंसिडर किया जाता है, जैसे मैंने बोला 3 टाइम खाना, कपड़ा और मकान, ये तीनों को बेस माना जाता है, एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माना जाता है। अगर इसमें भी इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर देखा जाता है, कुछ लोग रह रहे अच्छे से, कुछ लोगों को ये 3 चीज़ भी नहीं मिल रहा है, तो ये जो डिफरेंस है लेवल का, उस लेवल को पॉवर्टी बोला जाएगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट पैराग्राफ.
In this constance, poverty can be divided into two parts: traditional meaning of poverty or income poverty, modern meaning of poverty और नॉन इनकम पॉवर्टी। अगर इस कंटेंस्ट पे, अगर ये जो ऊपर बताई गई इस टॉपिक के रिलेवेंट अगर हम पॉवर्टी को डिवाइड करेंगे या क्लासीफाई करेंगे तो दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक तो ट्रेडिशनल मीनिंग, पुराने ज़माने से ही पॉवर्टी का मतलब क्या माना जाता है, तो वो पैसों के रिलेटेड। जो पैसे वाला नहीं होता है वो गरीब होता है, जिसके पास प्रॉपर इनफ पैसे नहीं होते, जो अपना 3 टाइम बेसिक जो नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, उसको ट्रेडिशनली पॉवर्टी माना जाता है, पुअर माना जाता है। और दूसरा है मॉडर्न मीनिंग। मॉडर्न मीनिंग मतलब जिसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं, बट मॉडर्न वे में कैसे वो पुअर माना जाता है। जैसे आजकल ये माना जाता है ना, आईफोन किसी के पास होता है और किसी के पास नहीं होता, तो बोले मैं तो गरीब हूँ यार, मेरे पास थोड़ी आईफोन होगा। दिस इज अ नॉर्मल डायलॉग, हाँ, बट सी पीपल आर कंसिडरिंग पॉवर्टी विच व्हाट टॉपिक। ओके ये टॉपिक कहाँ से कहाँ चली गई, तो नॉन इनकम भी होती है और इनकम भी होता है। सो नाउ लेट अस सी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इनकम के रिलेटेड कैसे देखा जाता है। According to income definition of poverty, a certain normative minimum level of per capita consumption expenditure required to ascertain minimum basic needs and services is called poverty line। तो यहाँ जो इनकम डेफिनेशन पॉवर्टी का देखा गया उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, एक नॉर्मेटिव यानी एक नॉर्मल मिनिमम लेवल जो पर कैपिटा कंजप्शन का माना जाता है। पर कैपिटा कंजप्शन यानी हमारे खर्चे के लिए पर कैपिटा जो माना जाता है, उसका जो एक्सपेंडिचर माना जाता है, उतना मिनिमम बेसिक नीड और सर्विसेज भी जब हम हमारे लिए ना अवेल कर पाए तो उसे कहीं ना कहीं पॉवर्टी बोला जाता है। और वो जो पर कैपिटा का लाइन जो एक नॉर्मेटिव लेवल को बताता है, उस लाइन को पॉवर्टी लाइन बोला जाता है। All people who have less than required income or spend less than required income expenditure are said to be poor. So, according to this interpretation, poverty is a state of scarcity. तो सारे लोग जिनको जितना चीज़ें चाहिए यानी जितना इनकम चाहिए उतना इनकम नहीं मिल पाता है, और अगर उतना इनकम ना मिलने की वजह से वो उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते तो उनको गरीब बोला जाता है। अगर वही है तो उस हिसाब से अगर हम देखें पॉवर्टी का मतलब एक स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब जो कमी। अब वी कैन से दैट स्कैरसिटी, यू नो दैट वेरी वेल। स्कैरसिटी का मतलब जब हमें 10 यूनिट्स की ज़रूरत हो और हमारे पास 80 हो तो 2 लोगों को वो चीज़ नहीं मिलता है तो उसे स्कैरसिटी माना जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इनकम हमें जितना चाहिए उतना हमें नहीं मिल पाता है तो उसे हम स्कैरसिटी मानते हैं। तो पॉवर्टी एक स्टेट ऑफ स्कैरसिटी माना जा सकता है, ऐसा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दिया है। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द फर्दर पैराग्राफ। In India, poverty line is defined in reference to consuming minimum required calories or minimum consumption expenditure required to get minimum calories. But the limitation of this method is that it only shows the situation of non-availability of food or starvation. Poverty is not only a situation of starvation. अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन को कैसे डिफाइन किया है। मिनिमम कंजम्पशन हमें कितना चाहिए, मिनिमम कैलोरीज हमें कितना चाहिए, यानी मिनिमम दिन में हमें इतना कैलोरी मिलना चाहिए, मिनिमम दिन में हमें इतना कंज्यूम चीज़ों को करना चाहिए, इतना एक्सपेंडिचर हमारे पीछे हमें मिलना चाहिए अगर हमें मिनिमम कैलोरी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेकिंग, हमें मिनिमम दिन का 1250 कैलोरीज मिलना चाहिए, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओनली आई एम टेलिंग, आई एम नॉट अ साइंस टीचर। तो अगर हम 1250 कैलोरीज मिलना चाहिए ऐसा हम मान लेते हैं, तो अगर उतनी कैलोरी के लिए हमें उतना खर्चा करना पड़ेगा, उतना हमें उसके पीछे पैसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैलोरीज ऐसे ही नहीं मिलेंगे, खाना हमें खरीदना पड़ेगा। तो जब हम उतना मिनिमम कैलोरी भी नहीं खरीद पाते, वो जो लिमिटेशन का जो मेथड देखा जाता है, जितना हमें कैलोरी चाहिए वो पैसे ना होने की वजह से हम उसको खरीद नहीं पाते और खा नहीं पाते, हमारे पास वो नहीं होता है। तो ये जो नॉन अवेलेबिलिटी का सिचुएशन है जो खाने की हमारे पास, जिसकी वजह से हमें स्टारवेशन यानी भूखमरी का फेस आउट करना पड़ता है, तो इस सिचुएशन को इंडिया के अंदर पॉवर्टी माना जाता है। बट पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सिचुएशन नहीं जो सिर्फ भूख के साथ ही रिलेट करता हो, उसके अलावा भी पॉवर्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट पैराग्राफ।
In the concept of minimum required standard of living, apart from food, other necessities such as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also included, and then only the non-income poverty has become a popular modern concept of poverty. अगर हम concept की बात करते हैं standard of living की, तो minimum required standard of living क्या है? खाने के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे necessity होते हैं, जैसे कपड़ा, घर होना, एजुकेशन मिलना, अगर हम बीमार हो तो दवा के लिए, हेल्थ के लिए हमें कुछ चीज़ें मिलना, क्लीनिनेस, आजू बाजू में सराउंडिंग अच्छा हो पाना, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलना। तो ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करते तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नॉन इनकम पॉवर्टी में इंक्लूड किया जाता है। ये तो पैसों के रिलेटेड नहीं होता, अच्छा पानी मिलना, हेल्थ अच्छा रखना, ये सब तो खाने से मिल सकता है, बट ये सब नॉन इनकम पॉवर्टी में भी देखा जाता है। इसीलिए ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी के नाम पे पॉपुलर होता हुआ नजर आया है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे। आई होप दैट कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the part 1 of the chapter number 5, poverty, in which we have seen the introduction of the chapter. So what is poverty? So how the poverty has been seen by the different states of the countries and how it has been interpreted by each and every country, that we have discussed about in a very detailed manner. If you are talking about the introduction, in introduction it has been shown up that when a person or a group of economic is not possibly able to attain the minimum basic requirement, that is considered as poverty according to that portion. So for economic development, the most barrier we can say that is lagging the economic development, that is poverty. Because what is economic development? Economic development is always oriented with the human development, and if you are talking about the human development, it means the human development should be done with a good welfare and social standard of living in a better manner. So these all things have been considered in that portion. After that we have seen the meaning of the poverty. In the meaning of the poverty, again if you are discussing the meaning of the poverty, it tells us that when an individual is not able to fulfill the basic requirement and when there is an inequality in the income, these all situations creates up the poverty in a very problematic scenario. Rather than that, we have seen if you are classifying the poverty, it can be classified in two portions. First is the traditional approach, which is considered as the income approach, and second it is the non-traditional approach, or we can say that the modern approach, which is considered as the non-economic poverty. So in these two manner we can classify the poverty according to the current scenario. And then we have discussed about the India's poverty. What is India's poverty? So in India we consider that when a person is not able to fulfill the minimum required calorie of his body and he cannot do the minimum consumption expenditure, then it is considered as the poverty. Rather than that, the food or the starvation, that is been a reason for the poverty. Here the unavailability of the food is considered as the poverty, or starvation is considered as the poverty. But poverty is just not a starvation, it includes many more things in it. There are so many basic other necessities rather than foods, that is clothes, housing, pure drinking water, education, health. So these all things are coming up in the non-income poverty. So these all things are being discussed about this way in the today's portion. I hope that you all have understood the today's video in a very well manner. I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.